Hello students, welcome to the maths class. In the previous class we studied about subtraction of rational numbers. So I hope you were clear with the concept and you practiced so many questions related to it. If in case you have any problem in any of the questions, send me your questions, ask me your doubts, I'll clear them. But for now, today we will discuss about multiplication of rational numbers. So, how you multiply the rational numbers when they are provided to you. See here, if P upon Q and R upon S are two rational numbers, then अगर आपको दो rational number दिए हैं, if you are provided with two rational numbers such that one is P upon Q and another one is R upon S. So how you do the multiplication? You simply write P upon Q multiplied by R upon S and do the multiplication like this. That means multiply numerator with the numerator upon multiply denominator with the denominator. So numerator was P and R, so P into R upon denominator was Q and S, so Q into S. So it is so easy. Okay, there are some points which you have to note in your mind and you have to remember them always while multiplying two rational numbers together. These are the points that when you multiply a positive rational number and a positive rational number together, you will get a positive value. ओके ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बेसिक्स हैं जिनको आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते समय ध्यान रखना है कि अगर दो आपके रेशनल नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं, सो द फाइनल वैल्यू विच विल ऑब्टेन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू. Now, when you multiply a positive rational number with a negative rational number, the final rational number which you will obtain after multiplication will be negative. कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको फाइनल रेशनल नंबर जो मिलेगा वो भी नेगेटिव होगा. थर्ड पॉइंट इज व्हेन यू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर टुगेदर यू विल गेट नेगेटिव रेशनल नंबर इन द आंसर. देखिए ये दोनों पॉइंट्स में वही सेम बात है. Okay, now let us discuss fourth point, that is if when you multiply negative and negative rational number together you will get a positive rational number. Okay, see, जब भी आप different signs के rational numbers को multiply करेंगे तो आपको negative मिलेगा. इसे ही conclusion निकलता है ना. देखिए यहाँ पे एक positive एक negative था तो आपको negative मिला, negative एक positive था तो आपको negative मिला. मतलब जब आप एक positive एक negative that is different signs के rational number को multiply करेंगे, so the final rational number which you will obtain after multiplication will have negative sign. And when you multiply rational numbers with same size का मतलब दोनों का पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों का नेगेटिव भी हो सकता है. जो भी साइन हो दोनों के पास सेम होना चाहिए. सो आपको हमेशा फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव रेशनल नंबर की मिलेगी. देखिए इसमें दोनों रेशनल नंबर्स पॉजिटिव थे, सो फाइनल रेशनल नंबर विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव वैल्यू. इसमें दोनों रेशनल नंबर्स नेगेटिव होंगे, सो फाइनल रेशनल नंबर विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर. Okay, now let us discuss a question, that is implement these concepts in the questions. So here are two rational numbers 11 upon 13 multiplied by minus 26 upon 44. So here are two rational numbers, you have to multiply them together. So as I told you, multiply the numerator with the numerator upon multiply the denominator with the denominator. So 11 multiplied by minus 26 upon 13 multiplied by 44. अब हम कैंसिल कर सकते हैं. अगर आपके टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो आप उनको कैंसिल कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिल जाएंगी. फिर आप उसको लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा. सो इफ दे आर गेटिंग कैंसिल टुगेदर, अगर आप उनको लोवेस्ट फॉर्म में अभी ही चेंज कर सकते हैं, सो कैंसिल देम. सो देखिए 11 1 जा 11, 11 44 जा 11, सो 11 4 जा 44. सो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44. 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26, लेकिन यहाँ माइनस 26 है, सो माइनस 2. ओके ओके, सो 1 इंटू माइनस 2 विल गिव यू माइनस 2. जैसा मैंने कहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू, सो पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इंटू नेगेटिव वैल्यू विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, सो माइनस 2. ओके, नाउ 1 इंटू 4 विल गिव यू 4. फाइन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, सो माइनस 2 अपॉन 4. नाउ कन्वर्ट दिस इंटू लोवेस्ट टर्म, सो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, और यहाँ माइनस साइन था तो आपका माइनस साइन मिल गया. अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप एक पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करते, ये नेगेटिव रेशनल नंबर था ना बिकॉज इट हैज़ माइनस साइन, साथ में मल्टीप्लाई करते जो फाइनल वैल्यू आपको मिलती है वो नेगेटिव मिलती है. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव गिव्स यू नेगेटिव, सो देखिए फाइनल वैल्यू आपको नेगेटिव मिली है. ओके, now let us discuss a word problem related to multiplication. Find the cost of 5 whole 3 upon 4 meter of cloth
एट ₹42.2/3 पर मीटर। आपको देखिए 1 मीटर कपड़े की वैल्यू दी है, 1 मीटर कपड़े का प्राइस दिया है क्या 42/2/3, और आपसे बोला गया है आप 5/3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ की 5/3/4 मीटर ऑफ कपड़े की प्राइस बताइए। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले 1 मीटर कपड़े की प्राइस लिख लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज दिस वन। जिसके पास पर मीटर लिखा होता है मतलब होता है वो 1 मीटर कपड़े की प्राइस है। सो इतनी जो प्राइस है वो कितने की है, 1 मीटर कपड़े की। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹42.2/3। फाइन, अब आपको निकालनी कितनी है, इतने मीटर कपड़े की प्राइस निकालनी है। Therefore, cost of 5/3/4 meter of cloth is multiply this quantity of cloth, कितनी quantity, 5/3/4 meter with price of 1 meter of cloth। जितनी आपको जितने कपड़े की प्राइस पूछी गई उसको 1 मीटर कपड़े के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5/3/4 मल्टीप्लाइड बाई 42/2/3। नाउ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, change them into imperfect fractions, both of them. So 23, 4 5 is 20 plus 3, 23/4. Likewise 3 into 42 plus 2 gives you 128/3. Fine, ये imperfect fraction हो गए, so multiply them. Now multiply numerator with numerator. अच्छा देखिए, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, सेम जैसे मैंने इसमें बोला था। सो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो जो भी कैंसिल हो रहे हो, कंपल्सरी ये जरूरी नहीं है कि सब कैंसिल होने चाहिए। इसमें देखिए सिर्फ 4 1 जा 4, 4 32 जा 128। अब 3 और 23 तो आपस में कैंसिल होंगे नहीं। ओके, सो 4 1 जा 4, 4 32 जा 128। नाउ मल्टीप्लाई देम अकॉर्डिंगली। 23 into 32 will give you 736, 1 into 3 will give you 3, so that means 736/3। अब इसको ये imperfect fraction है, change them into mixed fraction, so you'll get 245/1/3 rupees, because हमें प्राइस पूछा था ना इतने कपड़े का, so इसलिए प्राइस किस में आएगा, रुपीज में। Be very alert about the unit. So that means इतने 5/3/4 मीटर ऑफ क्लॉथ की प्राइस क्या है, 245/1/3 रुपीज।